one trailer project for the residential building, and also one project from China, Nimbo Crown Gardens. The last I want to expand our Kinang India. This year our Kinang Hardware India company is established. And established reminded me to think about our first office in Mumbai. I think it's 7 years ago, 2007. Our Kinang come into the India market, and the first branch is Mumbai. Now we expand the 4 branch office. One is in Delhi, one is in Mumbai, the third is Bangalore, the last in Hyderabad. I tell you the guys, the good news. Our warehouse facility comes soon. I think in coming year. The landmark project from different countries with quality and reliable of Kinang. We supply not only products, but also extend on-time service and technical support. Also, we have local office in different countries. We have 4 offices and teams in India. So thank you. Thank you, Lucky. So now we have the last part of the show. Kareena Kapoor and Deepika have been called. They will be arriving in about half an hour. But before that, we have a panel discussion. So so Kareena will come. Deepika, I'm not very sure. She called me just a while ago. Okay, so I'd like to call upon our very esteemed panelists who've been very nice to have come over, spend the time. I'll start with, these people need no introduction, but you still have to clap for them. I'll start with Mohit Gajjar, Principal ADS Architects. Mohitji, please. Welcome. Have a seat. So since you're the architect, I would ask you to take the center stage. We'll have the killers on the left and the right, the fabricators, and I'd like to call upon, what I see in the picture is a very dashing gentleman, Amish Agarwal, Director, Safal Constructions. Amish, I think the gentleman who pays everybody the money. Amish, would you just shift to this side, please, if you don't mind? Thank you. I'd like to call upon a consultant, of course, very important, जो सारे project की जय जय कर देते हैं. सुरेश जी, please आएं. Whichever one आप बजवाना चाहते हैं, बैठ जाएं वहीं पे, कोई इशा नहीं. I'd like to call material manufacturer from Commerling, Farid भाई. आप कोने पे बैठे सर. Enjoy. और now I'd like to call upon a very, very famous personality here, a very renowned fabricator, well-known person, Ashit Bhai Vora. And last but not the least, Dhaval Bhai Sheth, Angi Architectural. आइए सर. आपने शायद questions काफ़ी पढ़ लिए हैं. मैं उनमें से कुछ भी नहीं पूछने वाला हूँ. अच्छा, आप में से किसी का नाम गीता है? Nobody is Geeta here? Isha, can you stand here for a second? Come in the middle, please. In the middle, please. One sec, please. Allow me. So you just put your right hand forward, please, gentlemen. मैं ईशा पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा. So that's clear? Okay. Thank you very much, panelists, to come over. So I'd आप कोई किसी से भी कोई भी प्यार मोहब्बत दुश्मनी निकालना चाहें, आज आपके लिए बेस्ट मौका है और आप सबके लिए. So I'd like to start with the architect here, sir. पता नहीं सर, आप जैसे बोलेंगे वैसे कर देंगे. But the first question is what has changed in 10 years, particularly for Windows? विंडो में काफ़ी इनोवेशन आया हुआ है. पहले तो लकड़े का यूज़ हो रहा था, अभी काफ़ी नए मटेरियल्स आ रहे हैं, मतलब एल्यूमिनियम पे जा रहे हैं, यूपीवीसी पे जा रहे हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इसमें और लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है. अभी इम्प्रूवमेंट थोड़ा बाकी है, अगले 10 साल में हो जाएगा, होप. थैंक यू. बट आपके अपने पर्सपेक्टिव में आपको रोज़ कोई ना कोई विंडो बेचने वाले आजकल आते हैं या प्रेजेंट करने आते हैं, तो आप उनसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली? हाँ भाई क्या रेट है, फिर चले जा, या नहीं. कुछ और क्वेश्चन भी पूछते हैं? मेरा काम रेट देखना नहीं होता है, जी. बेसिकली उनकी किस टाइप की क्वालिटी है, क्या यूटिलिटी है, वो देखना होता है.
तो बस मैं तो वही देखता हूँ, कॉस्ट तो बिल्डर देखता है, मैं नहीं देखता है। अमीश, आपका क्वेश्चन वही है 250 से 500 या हाउ डू यू लुक एट इट नामिन? With the advent of technology and the access to all the information, it's an open market, so you pretty much have access to everything that you want to know. Right. And the architect gives you a certain specification, and then it's at the end of the day, it's your call where you want your product to stand and the kind of offering that you're doing, and you need to balance it out. A lot So of what times, is what is your consciousness particularly to, like Samarth used the word of fenestration? Yeah. How conscious are you about good fenestration? I Or mean, what is right in fenestration? today's times, given the competitive environment and with the advancements in the fenestration industry, everyone's very conscious because today window is just not another opening in the building. It's actually your floor plan integrates the window with the overall space, and it's a very sublime integration of the outside and the inside. So you cannot just overlook it. It's as important a constituent of any other part of your building design, and it's aesthetics, it's performance, it's engineering, and at the end of the day, it's quality execution too. That brings the entire mix together. And So obviously, how many meetings are happening with respect to window design, window performance during the course of your discussions with your consultants and I think you architects? can ask Mr. Suresh that. Suresh? Whenever he answers the phone. We've just started now with this project where the concept is ready, and now we are getting into the window part. So like what I discussed before is what I'm going to look at. So you've been around for a long time, Suresh. What has changed in specifically Gujarat market? I think past 10 years, Gujarat market has changed a lot in terms of the perception of how a building is supposed to be constructed. I was here 15 years back. Those days it was like not even, it was like 200 rupees ka window, 180 rupees mein hamara sliding window dalo. Anodizing was 15 microns, and now it is little bit changing. I can see the difference because the architects and the client is basically coming up with wow buildings, you can say. Right. So I think that is changing the whole perspective because it's not that easy to do it. Because if you want to remain, if you want to spend that money, then you need to. So like you have specifications in the rest of the country, like in Bombay or in Delhi or in Bangalore or Chennai. Are those specifications for windows getting stricter? Are your clients asking you to make perhaps specifications? I think the specifications what we are following in Bombay is going to follow in Ahmedabad now. Are we doing it already? It's going to start. The concept has come up. तो We are आशीष ready भाई now. आपको We are कितने the next टेंडर stage. आते हैं जो स्पेसिफिकेशन ड्रिवन आते हैं और सच्ची दिल से बोलने का कि लास्ट में बोलते हैं देख भाई ये काम तेरे को ही देना है ये रेट करके ले करके कंटिन्यू निकल जा। टेंडर जितने भी आते हैं वो स्पेसिफिकेशन के साथ ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम यहाँ बिना टेंडर से ही होता है जी। क्योंकि टेंडर होता ही नहीं है। नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में टेंडर मिलते हैं, बट कॉर्पोरेट में हाउसिंग तो कुछ खास है नहीं ना, दैट इज मोस्टली फॉर ग्लेजिंग जॉब। तो पर्सनल रिलेशन के ऊपर ही बात जा रही है। तो कहानी कहाँ पे आपको लगता है और कहाँ पे होनी चाहिए? कहानी जैसे यहाँ फसाड कंसल्टेंट की अभी अहमदाबाद में नई एंट्री हुई है, तो अभी तक अहमदाबाद में हाई राइज बिल्डिंग बन ही नहीं रहे थे। विंडो के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो किसी ने इतना डेप्थ में जाने का कोशिश भी नहीं किया। और यहाँ का मार्केट बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है अहमदाबाद। हर जगह है, इंडिया में हर जगह प्राइस पहले आता है, पर्टिकुलरली अहमदाबाद ज़्यादा है। वो सब जगह पर्टिकुलर है सर जी। हाँ। हाँ। हम सब जगह हर चीज़ बेचते हैं, तो सब जगह सब लोग। आज मैं सुबह कुछ अपने पार्टनर से मिला तो बोले सर अहमदाबाद मार्केट ना इंडिया जैसा कोई ऐसा है नहीं, इधर सबसे पहले क्या बोलता है प्राइस बोल प्राइस बोल। तो दैट इज कॉमन फॉर एवरीवेयर, हर बिजनेस में बराबर। बट स्टिल तो अभी ये अवेयरनेस आ रही है, क्लाइंट्स भी एक्सपीरियंस देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं। उससे पहले ये नहीं था। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। और दूसरा, आपने बताया था कि सबको 3 बटन दिए गए। मैं ट्राई करूंगा तीसरा बटन जो किसी ने यूज नहीं किया, मैं गुजराती में, जो ऑडियंस भी बिल्कुल गुजराती बिल्कुल है, जोरदार तालियां जी आशीष तो भाई मैं के लिए। गुजराती में बात करूंगा। मैं भी समझने थोड़ा की सा कोशिश करूंगा। लोगों को भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा बोलने का। बिकॉज वी आर गुड लिसनर। फैब्रिकेटर को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है ज्यादातर। हाँ, વિન્ડો બિઝનેસમાં જ્યારે અમે લોકો આવ્યા ત્યારે 10-15 વર્ષ પહેલાં ફેબ્રિકેટર એટલે વી આર મિસ્ત્રી। ઘણા બધા અમને આમાંથી ઘણા બધા ફેબ્રિકેટર છે, ઘણા બધાનો અનુભવ થયો હશે। કોઈના ત્યાં ગયા તો કે મિસ્ત્રી તમારી વાત તો સાચી પણ આનું શું, એટલે આ બહુ કોમન લેંગ્વેજ હતું। જ્યારે બિલ ગેટ્સે વિન્ડોઝ બનાવી પછી અમને લાગ્યું કે ના, પણ અમે પણ કંઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આવ્યા।
એટલે વી થેન્ક બિલ ગેટ્સ કે ભાઈ એને પણ વિન્ડો બનાવી. समझ तो आया बट पूरा नहीं आया बट फनी लगा. बिल गेट्स ने विंडो बनाई, उसके बाद हमको थोड़ा मजा आया कि नहीं चलो यार वो भी विंडो हमारा बना रहे हैं, भी दुनिया मौका का मिला. रिचेस्ट पर्सन भी विंडो बना रहा है, हम भी विंडो बना रहे हैं. राइट राइट राइट. तो थोड़ा सा एक इंडस्ट्री में मजा आया कि भाई, और बाद में फील होने लगा कि नहीं. और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, बाहर की कंपनियों से हम लोग ने टाई अप चालू किया. हम लोग ये यूरोप की जैसे जर्मनी की कोमर लिंक है, बेल्जियम से हम लोग रेनर्स के साथ, तो बाकी बाहर की कंपनियां आती गई, वैसे वैसे हमारी भी अवेयरनेस बढ़ती गई. हम लोग ने काफ़ी कुछ चीज़ सीखा जो ट्रेनिंग आज तक किसी ने, नॉर्मली इंडिया में वो ट्रेनिंग वाला सिस्टम ही नहीं था. तो उनसे सीखते गए कि भाई विंडो फिक्स कैसे करनी है, बनानी कैसे. छोटे छोटे पैरामीटर्स जो हम लोग नज़रअंदाज कर देते थे, वो पैरामीटर्स भी इतने ज़रूरी थे. सिलिकॉन आज की तारीख में, जैसे अभी ये बता रहे थे कि सिलिकॉन में जनरल पर्पस, कभी आप ही बता रहे थे जी. जनरल पर्पस कभी नहीं बता, शुक्रिया. यूज नहीं करना चाहिए. तो सिलिकॉन सब लोग बोलते हैं, मैं भी डाउ कॉर्निंग यूज करता हूँ, मैं भी मैको यूज कर रहा हूँ, मैं भी जी कर रहा हूँ, लेकिन जी में भी कितनी प्रोडक्ट आ रही है, कितनी रेंज है, वो किसी को नहीं पता. राइट. तो खाली कॉस्ट चीज देखी जाती थी. तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन से भटक गया हूँ, एक बार फिर से बोल दीजिए आप क्या पूछना चाहते थे. मैं आपके लिए नया क्वेश्चन बना देता हूँ. मैं ये क्वेश्चन ये क्वेश्चनर हमने बनाया ज़रूर था, ये सिर्फ आपको डराने के लिए था. बट फंडामेंटली जैसे आपने बड़ा सही चीज़ बोली कि टाइम बदल गए, आपने भी कोशिश करी कि अपनी नॉलेज बढ़ाऊं. अगर आपके पास नॉलेज ना बढ़ती तो ना आप किसी को बता पाते, ना आप किसी को सिखा पाते, ना आपकी वो सुनता, ना कोई कुछ करता. बट आप अपने डेवलपर्स और आर्किटेक्ट फ्रेंड्स को क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म पे? नहीं, रिक्वेस्ट एक ही करनी है कि आप जब भी, नो डाउट आपके पास अच्छे फसाड कंसल्टेंट है तो हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास फसाड कंसल्टेंट भी नहीं है, राइट. तो डेफिनेटली आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, हमारी राय जरूर लो. क्योंकि हम भी हमारी इंडस्ट्री में 20-25 साल से हमारा जो एक्सपीरियंस है, आपको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं. खाली आप हाई राइज बना रहे हो, ऊपर के स्टोरीज में विंड लोड वगैरह भी कैलकुलेट करना रहेगा, या रेन वाटर, साउंड इंसुलेशन, बाकी सब जो जो पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स भी आपने स्टडी नहीं किए, लेकिन हम लोग कर सकते हैं वो. तो आप जब अपने क्लाइंट से मिलते हैं, आप उनसे ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो ऑब्वियसली क्लाइंट बोलता है हमने सब कर लिया, आप हमें मत बताओ. या नॉर्मली होता है, नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं. मैं बोल रहा हूँ वी आर गुड लिसनर, अभी बोलना मौका ही नहीं मिलता. बट आप क्या कॉन्शियसली एक प्रोजेक्ट नहीं लेते क्योंकि आपको लगता है उसकी स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं है और कल को प्रॉब्लम आ सकती है? आपने कभी ऐसा किया? धवल भाई मे बी. एब्सोल्युटली ऐसा होता है कि कई बार प्रोजेक्ट्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी दे रिक्वायर्ड एट लो कॉस्ट. हम लोग काफ़ी बार ऐसा भी करते हैं कि प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि जब तक एक अच्छी रेट के या अच्छे प्राइस के साथ अच्छी प्रोडक्ट नहीं बिकती है. जैसे इसने अभी बताया कि विंडोज़ जब स्टीव जॉब्स ने बनाया तो उसके बाद हमको विंडो बेचने की मजा आई, लेकिन अभी तक कोई, अरे सॉरी, बिल गेट्स के स्टीव जॉब अभी तक कोई नहीं मिला है जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करे. प्रोडक्ट की वैल्यू तभी होती है जब उसकी कंपैरिजन कुछ अच्छे चीज़ के साथ हो. पहले जो विंडो बनती थी हम लोग पहले भी बनाते थे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने गलत विंडो नहीं बनाई है. लेकिन गलत विंडो तभी उसको कही जा सकती है कि जिस रेट से हम लोगों ने दी है उस रेट से वो नहीं होनी चाहिए थी. आज हम लोग जो ज़्यादा पैसे कमा लिए, नहीं, ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, वही बोल रहा हूँ मैं कि पैसे मुझे शायद थोड़ा गलत समझ है, सॉरी प्लीज. प्रोडक्ट आज भी हम लोग बेचते हैं, विंडो ही बेचते हैं, पहले भी विंडो ही बेचते थे. लेकिन विंडो की अवेयरनेस हम लोग पहले हमारे पास आती है क्योंकि जो सप्लायर्स हमारे पास पहले आते हैं, आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स के पास शायद टाइम भी नहीं है, ना वो सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें लगानी है. उनका पहला काम है जी आप Am I right? है Am I right, sir? किसी की बात नहीं सुनते. गलत बात है. नहीं, इवन द बिल्डर्स
डेवलपर्स। अभीश का पहले रिप्लाई आएगा, नहीं मोहित जी पहले आपसे। No, I mean it's not a question of time. It's like I said, it's a very important component of the building. So it's definitely due consideration given to all the aspects. How much effort have you taken exactly. yourself, Amish, to Yeah. learn about Windows? I mean, personally, a lot of effort. Because at the end of the day, like it's your final decision. So Right. you definitely need to be thorough. Like people are going to tell you, and इनके प्रोजेक्ट में कौन काम कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं? आप दोनों ही कर रहे हैं? आप भी कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं। आप ऑडियंस में से कोई कर रहा है सफल कंस्ट्रक्शन के लिए? दूसरा भी करता है। तो बहुत लोग कर सकते हैं। इनके बात पास- यहाँ सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन बात यहाँ एक या दो डेवलपर की बात नहीं चल रही है, बात like general- पूरी इंडस्ट्री की चल रही है, विंडो की चल रही है। मैं ना ही सिर्फ एक आर्किटेक्ट का या बिल्डर का नाम दे रहा हूँ, ना ही एक फैब्रिकेटर का नाम दे रहा हूँ। नहीं, बट हम सब तो एक कम्युनिटी है ना। Yes, अगर हम community सब है। अच्छा चाहेंगे तो सब अच्छा करेंगे, और ना अच्छा करने वाले भी हैं और अच्छा करने वाले भी हैं। सर और आपने हमेशा कितने रहेंगे। लोगों को बुलाया था यहाँ पे, कितने लोग आए हैं आज, कितने लोग सुन रहे हैं? 3 क्वेश्चन हो गए। कितनों को बुलाया था वो जैक बताएंगे। कितने लोग आए हैं? आई थिंक 300 कुछ लोग आए हैं, और मेरे को लगता है 50% तो सुन। थैंक यू। मेरी पर्सनल ये तो मैं नहीं पूछ सकता कि कितने लोगों को पल्ले पड़ रहा है। नहीं, वो तो आपको टाइम के साथ। एग्जैक्टली। बट एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑब्जेक्टिव ये कि दिस इज नॉट, यू आर नॉट गोइंग होम विद एनी कंक्लूजन टुडे। विंडो को अभी तक उतना मिला ही नहीं है अहमियत, इसलिए काफ़ी चीज़ें बिल्डिंग में लगती है, उसमें विंडो सबसे लास्ट में लगती है शायद, और उस टाइम तक में शायद या तो पैसा नहीं बचता है या उसका कॉस्ट कटिंग की बात आ जाती है। Am I right, sir? I would not agree with that. तो when it comes to at धवल least- भाई से 100 लोग अग्री करते हैं। No, I definitely would not agree with that because when you're building a new commercial building today, in today's time, when you're building a world-class high-end commercial complex, your glazing, your facade is a prime component. So when you factor in your cost per square foot, there is already a significant budget you've allocated, which is allocated to your glazing, and it is a very, very important component because that is your jewel, that is your face, those are the clothes that your building is adorning. So you definitely want to pay attention to that because a normal person, when you're selling to the people, what are you selling? You're selling the aesthetics, the space, the functionality. They don't get the technicalities and the engineering behind it, but you are definitely not going to compromise on it. Because today if you compromise on it, like why would someone buy your product? Someone's going to go somewhere Perhaps else. what you're saying is, whatever you're saying now is a reflection of what will come in the future. Yeah, What's done is done in the past. No, but we have projects which are testament to the importance that we have relayed to facades and windows and fenestration in the past. And I'm